हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन टुडेज़ मैथमेटिक्स क्लास। बच्चों, आपको अगर याद हो तो हमने हमारे प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था। टुडे विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड द न्यू चैप्टर इट इज़ सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फोर्थ स्टैंडर्ड एडिशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? Addition. What is the spelling of addition? ADDITON. Addition. Do you know what are the four fundamental operation of mathematics? तो four fundamental operation of mathematics: plus, minus, division and multiplication. These are the four fundamental operation of mathematics. मैथमेटिक्स में यही तीन चार हमें देखने को मिलते हैं। My dear students, in your previous class when you were in third standard, then you learn about the addition. We have learned in our previous class 2-digit addition, 3-digit addition. Yes, now here also some recapping is given that we have to solve. Yes, now you know very well 9 plus 6 how much? 9 plus 6 15. तो 15 का 5 1 carry. 4 plus 1 5. Now 5 plus 9 14. So here we have to write 14. तो आगे 1 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम 4 के साथ में 1 भी लिखेंगे, तो 14. नाउ इन द सिमिलर वे 5 plus 1 6, 8 plus 4 12, 1 कैरी, 2 plus 1 3, 3 plus 4 7. Now 2 plus 9 how much? तो 2 plus 1 10, 9 plus 1 10, plus 1 11, 1 carry, 9 plus 1 10, 10 plus 2 12, 12 का 2 1 carry, 5 plus 1 6, 6 plus 7 6 6. Now 6 plus 6 12. Now 1 add for 7 13. तो 3 13 21. 4 plus 5 9, 8 plus 4 12, 1 carry, 3 plus 1 4 plus 1 5. 2 plus 8 10 0 1 carry, 1 plus 9 10 0 1 carry, 5 plus 3 8 1 plus 9 900 and now 900. Then 1 plus 9 10 1 carry, 10 1 carry 3. तो 300 is the answer. So this way we have to solve. Okay, तो ये कुछ एडिशन था जो हमने किया। याद रखें, हमेशा एडिशन का साइन ऐसे होता है। यस, now what we shall learn in this chapter? In this chapter, student will learn adding 5 or 6 digit number without regrouping. Now what is the meaning of without regrouping? The meaning of without regrouping is without borrowing any carry. Then we'll learn the adding 5 to 6 digit number with regrouping, means with carry. How to borrow the carry, how to pass on the carry, that we will learn. We'll learn about the properties of addition. We'll find the missing digit in addition sums, and we'll also solve the story sums. Sum is also mean plus addition. Okay, let's start here with exercise number second A. What is given the exercise? Can you see ones, tens, 100, 1000, 10,000? What the question is? Add the following. Now we have to add. We have to do the addition. 9 plus 0. आपको याद होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर हो उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है। ओके, याद रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आंसर? 0 0 आएगा? नो, 9 9 plus 0 9. Now here tens. 1 plus 6. 1 plus 6 is 7. 100. 3 plus 3 6. 1000. 7 plus 1 8. 10,000. 4 plus 1 5. So this is the answer. Now this one also we have to solve. 5 plus 2. What is 2? 7. 1 plus 4. Here 5. 2 plus 5 7. 3 plus 1 4. 2 plus 4 6. 4 plus 3 7. Okay, that's it. Come to question number C. 6 plus 3
9. 9 plus 0, 9 only. 7 plus 2, 9. 9 plus 0, 9 only. 2 plus 0, 2 only. Plus 3, 5. 0 plus 4, 4. Plus 3, 7. 2 plus 5, 7. Plus 1, 8. 4 plus 1, 5. Plus 3, 8. So this is the answer. So my dear student, this way we have to solve the question. Okay. Now the next one is given, find the sum. Now here the sum means addition only. We have to add. How we will be adding? You know, suppose if this is our question, yes, then how we will add? 7, 2, 3, 1, 8. And now we'll start from here. Right hand side, 0, 5, 2, 7, 2. And this is the sign of addition. Now find the total. In your notebook you have to do this. 8 plus 0, 8, you know very well. 1 plus 5, 6. 3 plus 2, 5. 2 plus 7, 9. 7 plus 2, 9. So this is the answer. So this way we have to solve all the find the sum question. Yes, A, B, C, D. Okay, dear students. So this is just we have seen the exercise 2.A, means 2A. Now we'll learn the next concept. What is given about the next? Next is given about the addition. Here addition of 5 digit 1, 2, 3, 4, 5 or 6 digit with regrouping. Yes. With regrouping means with carry. Regrouping means with carry. Carry we will borrow, carry will take. Yes, like this way. So let's see how we will do this. Here the example is given. This is the example 1. You can see where the number is given 426718. We have to add this number with the another number 281819. So how will I add this? So first we have to write the first number like this way. Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh. We written. Now we'll write then another number from the right hand side. Now right, how we'll write? We write first. This one we write. Okay. Something difference is given here. 9, 1, 8, 1, 8, 2. Now this way write from right hand side we have to write the second number. Okay. So now finally we have to add it. Now if we'll add the given number, then what will we be getting? Suppose this here actually 9 is there, but by mistake it is written 6. So now 8 plus 9. We know that 9 plus 9 is 18. Less 1 is 17. So 17 ka 7 and 1 carry. 1 plus 1, 2 plus 1, 3. So 3 is the answer. 7 plus 8. 7, 14 plus 1, 15. 15 ka 5, 1 carry. 1 plus 6, 7. 7 plus 1, 8. 8 is the answer. 2 plus 8, 10. 10 ka 0, 1 carry. 1 plus 4, 5. 5 plus 2, 7. So this is the answer. What is the answer? 708737 because 9 is there at last. Okay, so this is the answer. And in this sum you have seen कि हमने कुछ numbers जो हमने राइट हैंड साइड से सॉल्यूशन करना चालू किया, यहाँ से हमने राइट हैंड साइड से सॉल्यूशन चालू किया करना, ऐसे यहाँ से ऐसे किया, तो जो नंबर 2 डिजिट के थे उनके जो वंस के प्लेस वाले नंबर थे उनको जगह मिली, बाकी जो नंबर टेंस के प्लेस पे था उसको कैरी फॉरवर्ड हमें करना पड़ गया. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हमने टोटल किया तो 2 डिजिट आ रहा है तो वंस वाला नंबर रह रहा है और टेंस वाला टेंस पे कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो 1 की प्लेस पे वो नंबर है और दूसरा टेंस वाला कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है. तो ऐसे हमें इस सम को करना है. यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताया गया है एडिशन ऑफ मोर देन 2 नंबर्स. जब 2 नंबर से अधिक को हम जोड़ते हैं तो कैसे करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ करने के लिए बच्चों कि 9 + 4 + 4, 9 + 4 + 4 हाउ मच, तो 4 + 4 8, 8 + 9, चाहे आप इनका ऑर्डर कैसे भी चेंज कर दें, ऊपर आगे से नीचे बोले नीचे से ऊपर बोले आंसर सेम ही आएगा. 4 + 4 8. नाउ 8 + 9 हाउ मच, यस 17. 17 इज़ द आंसर.
ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव टू डू। ओके, अब इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे एक्सरसाइज नेक्स्ट चालू हो जाता है प्यारे बच्चों, एंड दिस इज अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों हमारा? नाउ ऑल द सम विच यू कैन सी हियर इन एक्सरसाइज नंबर 2B, दैट इज रिलेटेड टू विद ग्रुपिंग, यानी कि बोरो वाले एक्सरसाइज जो हमने 2A पढ़ा था उसमें विदाउट रीग्रुपिंग था, जिसमें कोई कैरी बोरो नहीं था। एक्सरसाइज नंबर 2B में रीग्रुपिंग हमें करना पड़ेगा, कैरी बोरो करना पड़ेगा, कैरी यहाँ से वहाँ देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यस, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस सम को भी कैसे करते हैं, देखिए एडिशन इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि 4, तो 4 प्लस 6 हाउ मच, वी नो दैट 10। नाउ 10 प्लस 9 19, 19 का 9 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 अगेन 10, 10 प्लस 7 17 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, नाउ 9 प्लस 5 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 5 17, 17 का 7 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12. So this is the answer. So this way we have to solve this addition. Okay, this is addition of 6 or 5 digit number with regrouping, means with carry. So now we'll talk about the next question, question number 2. In this question also we have to do the same things. How we'll be doing? Just we have to write the number. How we'll write the number? Let's see here. कैसे आपको लिखना है? In your notebook you will be writing like this way: 6 5 6 2 1 4. Now for writing the second number we have to write from the right hand side. First we'll write 4 2 9 6 3, and here addition sign will be there. No number is there, so we have to put here 0. Now it will become easy for us to do the addition. 4 plus 4 is equal to 8. 2 plus 1 plus 2 3, 9 plus 2, now if you add the 2 11, 1 carry 1 carry, 6 plus 6 12, 12 plus 1 13, 13 3 1 carry, 5 3 8 plus 9 6, तो 6 9 3 1 3 8, दिस विल बी द आंसर। तो बच्चों काफ़ी आसान है, आपको ऐसे ही आंसर सॉल्व करने हैं इन सब के। ओके, कर सकते हैं ना? वेरी गुड, यू ऑल आर स्मार्ट स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी द फर्दर। बच्चों अब मैं आपको कुछ एडिशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, जिस तरह अगर आपको किसी चीज़ का ट्रिक मिल जाए कि ये चीज़ कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे करना है, तो आप वो काम काफ़ी अच्छे से कर लेते हो। ऐसे ही एडिशन में भी कुछ टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जिनका हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट मी डिस्कस अबाउट ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। क्या क्या हैं ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है? आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ वी हैव। कितनी प्रॉपर्टी हैं बच्चों? वी हैव 4 प्रॉपर्टीज़, 4P। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। कैन यू सी हियर व्हाट इज गिवन? द फर्स्ट वन, रीड आउट। जीरो प्रॉपर्टी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी? PROPERTY, जीरो प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द जीरो प्रॉपर्टी? जीरो प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर ऐड करो, जीरो के साथ कोई भी नंबर ऐड, जैसे 0 प्लस 2 किया तो भी आंसर 2 ही आएगा, 2 प्लस 0 किया तो भी आंसर 2 ही आएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर ये कहना चाह रहे हैं अगर मान लो आपने 0 में क्या ऐड किया 2, तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। सेम जो नंबर 0 में ऐड हो रहा है वो नंबर सेम एज ए आंसर आएगा। और अगर हमने इसको मान लो उल्टा पुल्टा कर दिया, यस सपोज 2 को आगे लिखा फिर 0 को पीछे लिखा, तो आंसर क्या आएगा? देन ऑल्सो यू विल गेट द 0 ओनली, मतलब 2, तब आपको भी क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा एज ए आंसर। यस, तो बच्चों आपने देखा कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ 0। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 1। आप हमेशा याद रखें बच्चों, जब कभी भी कोई भी नंबर में 1 ऐड करता है तो उसका जो सक्सेसर होता है, बच्चों आपने सक्सेसर प्रीडेसेसर पढ़ा था, जैसे 1 में 1 ऐड कर दिया तो 1 का सक्सेसर क्या हुआ? 2, 2 का सक्सेसर क्या होगा? 3, 3 का सक्सेसर क्या होगा? 4, यानी कि एक नंबर ऐड कर दो, जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो उसका सक्सेसर होगा।
तो ऐसे कुछ हमने पढ़ा था, याद है आपको? यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, सेम एज इट इज़, कि बच्चों अगर कभी भी किसी नंबर में कोई 1 ऐड करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है वही आ जाता है आंसर। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव 10, 10 + 1 वी ऑल नो आंसर विल कम 11। ऐसे अगर 1 + 10 करूँ तो भी आंसर क्या आएगा? 11। ऑर्डर इज़ नॉट मैटर। यस, नाउ विल सी हियर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द ऑर्डर ओनली। देखिए बच्चों, मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि मैं 0 आगे लिखूं कि 2 पीछे लिखूं कि 2 आगे लिखूं कि 0 पीछे लिखूं, 1 आगे लिखूं कि 10 पीछे लिखूं, 10 आगे लिखूं कि 1 पीछे लिखूं, कोई मैटर नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो दैट इज़ अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? 0 प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 1, थर्ड प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। नाउ विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी। यस, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज़ दिस ग्रुपिंग प्रॉपर्टी? बच्चों ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर सपोज मान लो हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल, वी हैव द 3 नंबर्स। जैसे मैं वाइट बोर्ड के सहारे आपको बता देना चाहता हूँ, 1 + 2 + 3, हाउ मच आंसर? 1 + 3 + 3 6। अगर मैं 1 में पहले 2 ऐड करूँ, यस, तो आंसर आएगा 3। फिर लास्ट वाला 3 ऐड करूँ तो भी आंसर क्या आएगा? 6। अगर मैं 2 में 3 ऐड करूँ तो 5 आएगा, 5 में 1 ऐड करूँ तो भी आंसर क्या आएगा? 6। तो यहाँ पे आप किसी के साथ भी ग्रुप बना लीजिए, ग्रुपिज्म कर लीजिए, कोई मैटर नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर जो है एज इट इज़ सेम आएगा। तो इसी को बोला गया है लास्ट में प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। क्या बोला गया है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। बच्चों यह एक्सरसाइज जो आपको दिख रहा है सेकेंड सी, वॉट एवर द थिंग आई हैव एक्सप्लेन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी दैट यू कैन डू बाई योर ओन सेल्फ। वी नो दैट कि here a number is given, what will be add in this box we should write, so the same we should get, so we know that very well। हमें पता है कि जब 0 में कोई भी नंबर ऐड होता है तो आंसर इटसेल्फ वो नंबर खुद ही आ जाता है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपको पता है 3 2 1 3 4 7 आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रू और फॉल्स बताना चाहता हूँ। ट्रू और फॉल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 एडेड टू अ नंबर गिव्स नंबर लेस देन द गिवन नंबर। तो आपको याद रखना, जब कभी भी किसी नंबर में 1 ऐड होता है तो उसका सक्सेसर आता है, ना कि लेस देन आता है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। 0 एडेड टू अ नंबर गिव द सेम नंबर, आंसर है सही। जब कभी भी 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो सेम नंबर आता है। द सम ऑफ 2 7 8 9 एंड 100 इज़ दिस। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि इट इज़ राइट और रॉन्ग। यस, इट इज़ राइट। यस, आप ऐड करोगे तो आंसर यही मिलेगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स विल फाइंड द मिसिंग नंबर डिजिट। बच्चों आपको एक गेम खिलाता हूँ, मज़ा आएगा। मिसिंग नंबर, हम एडिशन के दौरान कुछ मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है हमें। क्या हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। मिसिंग नंबर के लिए यहाँ पे सिंबल दिया गया है क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ द सिंबल गिवन? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 1000, 100 की तरह दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है, ये टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर 4। नाउ 4 में क्या ऐसा ऐड करोगे कि 1 आ सकता है? तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखें, 4 में अगर 1 ऐड करोगे तो 5 आता है, 2 ऐड करोगे तो 6 आता है। ऐसे क्या ऐड करना पड़ेगा? तो आपको पता चलेगा कि सर हमें 7 ऐड करना पड़ेगा। कितना? 7। तो 4 + 7 11 होता है। 11 का 1 यहीं रह जाएगा और ये 1 कैरी होके चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या ऐसा किया जाए कि ये 4 आ सकता है? तो ये माइनस तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब 14 आएगा। तो 14 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि आप 14 कैसे लाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 1 + 5 कितना होता है? हाउ मच? 1 + 5 इज़ 6। यस और नो? 6 होता है। यस, 6 + 4 कर देंगे तो कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस, फाइंड आउट द नंबर। कैसे फाइंड करोगे? यस, फोर्टीन लाना पड़ेगा यहाँ, तब आएगा। तो 6। नाउ व्हाट विल बी द नंबर हियर?
आप क्या बता सकते हो कौन सा नंबर आएगा? जल्दी फास्ट कैलकुलेट करिए बच्चों। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वह नंबर कौन सा होगा। यस, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, वह नंबर है, द नंबर इज़ 8। व्हाट इज़ द नंबर? नंबर इज़ 8। यहाँ पे 8 आएगा। 8 + 1 9। नाउ 9 + 5 14। 14 का 4 1 कैरी। नाउ 3 + 1 4 4 + 2 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। नाउ अब यहाँ 8 आना है तो 2 + 6 करेंगे तभी 8 आएगा। 6 आना है तो 5 + 1 करेंगे तभी 6 आना है। तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो। एक तरीके से प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हो कि ये जो नीचे आंसर है, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आया, तो 5 मिल गया। अब 8 में से 6 माइनस किया तो 2 मिल गया। यस, अब ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेकंड नंबर थोड़ा फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है, बाकी तो ईज़िली आप कर सकते हो। तो ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर। यस, तो ये एक्सरसाइज मिसिंग नंबर का आपको दिया गया है यहाँ पर, और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2D भी आपके पास है जिसमें मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों इसके बाद आगे हम बात करेंगे स्टोरी सम्स के बारे में। बच्चों इसमें बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें आपको एडिशन करना पड़ता है और आपको टोटल फाइंड आउट करना पड़ता है, और क्वेश्चन जो रहता है उसका रिप्लाई देना पड़ता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे दिया गया आपको। एक फ्रूट सेलर अर्न 10,212 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, और फरवरी में 12,621, फिर मार्च में। अब इस सब का ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हमने, तो फ्रूट सेलर अर्न इन जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, और सबको हमने यहाँ राइट हैंड साइड पे ऐसे ऐसे लिख दिया और टोटल मार दिया, और आप देखेंगे कि हमें आंसर मिल गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? हाउ मच डिड ही अर्न इन द 3 मंथ पुट टुगेदर। तो यहाँ पे देयर फॉर द फ्रूट सेलर अर्न टोटल इन द 3 मंथ्स। तो ऐसे जो टोटल आएगा वही आंसर हम लिख देंगे। तो ऐसे हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और पीछे एक्सरसाइज नंबर 2E आपको दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए। इसके साथ मैं PDF आपको भेजूंगा ताकि आप सॉल्व कर सकें, और यह जो हॉट क्वेश्चंस हैं इसे भी आपको बच्चों लिखना है। ओके ओके।